students, today I'll explain poem The Power of Music, which is originally written by Sukumar Roy in Bengali language, and later on it was translated in English language by Sukanta Chaudhary. He is also a well-known professor from Jaipur University, and he did a great job. If I'll talk about the biography of Sukumar Roy, he was a Bengali humorist poet, playwright, and filmmaker. He is also a son of Upendra Kishore Roy, a famous writer from Bengal, and he was born in Calcutta. And his writings were mainly characterized by wit, satire, and absurdist humor. So, humorist poet, his main purpose was to create humor among his readers through the writing, and which is mainly characterized by wit. There is not only humor, but wit was also there. And satire is a genre in which, like, a poet or writer used to expose something or someone in a humorous way. It's a direct, you can say the direct satire. So, Jane Austen is a well known satirist in English literature, and absurdist humor is also a form of humor. And one thing I want to make it clear that it is a translated work. So, in the translated work, so it is expected that there are some errors also because it's not possible to translate any work 100% in English or in other language. So maybe there are some shortcomings, but maybe the words poet have used here during translation can differ in the meaning, but you have to perceive um, whatever given in the full stanza. So let's begin the poem, The Power of Music. When summer comes, we hear the hounds. Bhishma Lochan Sharma, you catch his train on hill and plain from Delhi down to Burma. So here the poet is, yes, here the poet is saying that when the summer season starting, so in the beginning of the summer season, what they hear usually, we hear the hums. Hums here is conveying singing or is sing, but actually the meaning of hums is, have you ever heard that bees are humming? So bee sound is there, slow continuous sound, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं मधुमक्खियों का भिनभिनाना या फिर भवरों का भिनभिनाना। तो ऐसी साउंड जो है, ऐसी सिंगिंग जो है सुनने को मिलती है, कब मिलती है? जब समर सीजन जो है स्टार्ट होता है। हम्स मीन सिंग हियर। भीष्म लोचन शर्मा, सो हु इज द सिंगर हियर? इसकी आवाज जो है स्लो कॉन्टिन्यूअस हम जो है हमें सुनती है, वो है भीष्म लोचन शर्मा की। ये है हमारे सिंगर। तो वो जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो वो गाते हैं और उनकी सिंगिंग हमें जो है वॉइस जो है सुनाई देती है। हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन गा रहा है, भीष्म लोचन शर्मा। इन द नेक्स्ट लाइन, you catch his train on hill and plain from Delhi down to Burma. You catch his train. Strain, a particular sound that is produced through tension. जब बिल्कुल एक चीख जैसी आवाज, चिल्लाने की जैसे आवाज निकलती है स्ट्रेस के साथ, टेंशन के साथ, तो वैसी एक आवाज जो है वो आपको हिल पे भी सुनाई देती है, पहाड़ियों पे भी सुनाई देती है, प्लेन पे भी, प्लेन में भी सुनाई देती है। प्लेन हवाई जहाज की बात नहीं कर रहा, प्लेन एरिया। तो हमें मैदानों में भी सुनाई देती है, पहाड़ियों पे भी सुनाई देती है, फ्रॉम दिल्ली डाउन टू बर्मा। और दिल्ली से लेके बर्मा तक वो आवाज जो है गूंजती है। इजीली वन कैन रिकॉग्नाइज दैट हु इज सिंगिंग, भीष्म लोचन शर्मा इज सिंगिंग। इन द नेक्स्ट stanza, he sings as though he has
staked his life, he sings as though he has hellbent. He's hellbent, sorry. So he sings as though he staked his life. He sings. तो वो ऐसे गा रहा है जैसे कि उसने अपनी स्टेक्ड मीन्स रिस्क हिज लाइफ कि अपनी अपनी लाइफ जो है बिल्कुल दाव पे लगा दी है, दाव पे लगा दी है सिंगिंग के लिए। ही सिंग्स एज दाउ ही इज हेल बेंट। हेल बेंट, जब किसी चीज का पैशन, किसी चीज का भूत आपके सिर पे सवार हो जाता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं हेल बेंट। डेटरमाइंड टू डू समथिंग, कि मैंने गाना ही गाना है, चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैंने ये गाना गाना है। हेलबेंट, उसने एक जुनून बना रखा है कि मुझे गाना गाना है, चाहे मेरी जान जो है चली जाए, चाहे मेरी लाइफ को कितना भी रिस्क हो, लेकिन आई विल नॉट स्टॉप सिंगिंग, आई विल सिंग। द पीपल डेज्ड, डेज्ड हियर, stunned, confused. The people dazed, retired, amazed, although they know it's well meant. अभी लोग जो हैं, people, they were dazed. Dazed means very confused, retired. Their senses are retired. They are not able to think also what is happening, because he was not actually singing, he was screaming. वो screaming, चिल्लाना, strain के साथ उसकी जो आवाज निकल रही है वो चीख के साथ निकल रही है। Now he is singing. People were also aware that his main purpose is to entertain us. His main purpose, he is singing for us. But actually, what he is doing, he is like spoiling the peace of mind of people. So he is destroying the peace. So the people were retired from the senses. They were very confused with his सिंगिंग। तो वो इतना बेसुरीला गा रहा है, इतना बेसुरा गा रहा है कि लोगों की सोचने समझने की शक्ति जो है वो जा चुकी है। लोगों को पता है क्यों गा रहा है, हमारे लिए गा रहा है। पर्पस इज क्लियर। सो नेक्स्ट, दे आर ट्रेम्पल्ड इन द पैनिक, राउट और लैंग्वेज, pale and sickly, and plead, my friend, we are near our end, oh, stop your singing quickly. So here, अब जो लोग हैं वो कैसे हो गए हैं, ट्रैम्पल्ड, क्रश्ड इन द पैनिक। पैनिक, ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा दे रही है उसका, उसकी जो सिंगिंग है वो लोगों को एक मेंटल ट्रॉमा दे रही है। लोग क्रश्ड हो चुके हैं, बिल्कुल। रॉट और लैंग्वेज, पेल एंड सिकी, दे ट्रैम्पल्ड इन द पैनिक। तो उन्होंने ट्रॉमा में आके भागना शुरू कर दिया है, इधर उधर भाग रहे हैं। एंड पैनिक, राउट और लैंग्वेज, पेल एंड सिकली। तो राउट हेयर मीन्स कि वो बस अब हार चुके हैं, वो और ज्यादा अब नहीं सह पा रहे। और उन्होंने इधर उधर भागना शुरू कर दिया है उसकी आवाज से बचने के लिए। और वो कैसे हो गए हैं, पेल एंड सिकली, वो एकदम से बीमार पड़ गए हैं, उनकी स्ट्रेंथ जो है जा रही है। एंड प्लीट, माई फ्रेंड, वी आर नियर आवर एंड, और स्टॉप योर सिंगिंग क्विकली। और प्लीड, रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको कि तुम जो है गाना बंद कर दो। क्यों बंद कर दो, क्योंकि हम जो हैं वो, वी आर नियर आवर एंड, हम मरने वाले हैं। स्टॉप योर सिंगिंग क्विकली, जल्दी से गाना बंद कर दो। द बुलक कार्ट्स आर ओवरटर्न एंड हॉर्सेस लाइन द रोड साइड। अब उसके इतने बेसुरीली आवाज से, इतना ज्यादा वो बेसुरीला गा रहा है कि उसकी आवाज से बुल्लक कार्ट्स जो हैं, घोड़ा गाड़ियां जो हैं, वो बुल्लक कार्ट्स जो हैं वो गाड़ियां जो है उल्टी हो चुकी हैं। एंड हॉर्सेस लाइन इन द रोड साइड, और घोड़े कहाँ पे जाके खड़े हो गए हैं, रोड साइड। बैल जो है, बैलगाड़ियां वो उल्टी हो चुकी हैं। किस किसके असर के कारण, उसकी जो लाउड चीखने वाली सिंगिंग है उसके कारण।
और जो हॉर्सेस है वो लाइन अप हो गए हैं कहाँ? रोड साइड में। बट भीष्म लोचन अनकंसर्न गोज बूमिंग आउट हिज ब्रॉड साइड। और एक भीष्म शर्मा है कि वो अपना गाना जो है बंद ही नहीं कर रहा, अनकंसर्न्ड है, उसे पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। वो इतना ज्यादा खो गया हुआ है अपनी उस अ, बेसुरीली सिंगिंग में कि उसको होश ही नहीं है। तो वो जोर जोर से गाना जो है वो गाता जा रहा है। और जो हॉर्सेस हैं, एनिमल्स के ऊपर ये असर पड़ा है कि वो भागना चाहते हैं, वो भी वहां से भागना चाहते हैं। But Bhishmlochan Sharma is unconcerned, totally unaware what is happening outside. So he was like totally busy in his uh, singing. So in the next stanza, the rest broods resent the blare the hour they hear it sounded. They whine and stare with the feet in air or wonder quite confused. The fishes dive below the lake in a frantic search for silence. So here what poet is saying, the wretched brutes resent the blare, the hour they hear it sounded. So here wretched इसको बोला गया है एनिमल्स को। तो वो जो wretched एनिमल्स हैं, जानवर हैं, वो 1 घंटे से ठीक है चीख पुकार जैसी सिंगिंग सुन रहे हैं वो, और वो एकदम से अनॉयड हो चुके हैं। एनॉयड हो चुके हैं और वो वहां से भागना चाहते हैं। एक ही तरह का साउंड, वो जो चिल्लाने वाला है, जो उसका गाना है, वो सुन रहे हैं एंड दे फील बिटर। द वाइन एंड स्टेयर with the feet in the air or wonder quite confused, quite confounded, sorry. So the whine and stare with feet in the air. So वो रो रहे हैं, long complaining cry, whine एंड स्टेयर विद द फीट, और इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि उनको पता ही नहीं, उनके पैर जो हैं वो हवा में हैं, फीट इन द एयर, कि वो इतने ज्यादा उनकी सेंसेस डाउन हो चुकी हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा कि वो पैर हवा में रख रहे हैं कि नीचे रख रहे हैं। सो दिस हैपेंड विद द एनिमल्स, हॉर्सेस। और वंडर क्वाइट कंफाउंडेड, और क्या है कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, हैरान हैं। कंफाउंडेड मीन्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं। तो ये सारा कुछ किनके साथ हो रहा है? उन बेचारे मासूम या फिर रेस्ट एनिमल्स के साथ, उन मनहूस जानवरों के साथ। सो हियर द फिशेस dived below the lake in a frantic search for silence. So frantic here, wild with the fear. मीन्स इतनी ज्यादा डर के मारे वो इतनी ज्यादा घबरा गई हैं कि वो क्या सर्च कर रही हैं वाटर के अंदर जाके, डीप डाउन जाके, वो इतनी गहराई में जाके पीस खोज रही हैं कि जहां तक उनके कानों में किसके सिंगिंग की आवाज ना पड़े, किसके सॉन्ग की आवाज ना पड़े, भीष्म शर्मा के सॉन्ग की आवाज ना पड़े। उससे उससे बचने के लिए वो बहुत ही ज्यादा गहराई में जा रही हैं। किसके कारण? डर के कारण। वो बहुत ज्यादा वाइल्ड हो गई हैं और बहुत ज्यादा गहराई में वो पीस ढूंढने जा रही हैं। द वेरी ट्रीज collapse एंड शेक, और पेड़ उसकी सिंगिंग के साथ बिल्कुल हिल हिल रहे हैं, बहुत ज्यादा collapse गिर रहे हैं, शेक हो रहे हैं। यू हेयर द क्रैश अ माइल हेंस, सो क्रैशिंग साउंड जो है वो सुनाई दे रही है। सो इट्स हेंस अ माइल हेंस, इस तरह से जो टूटने की आवाज है, जो ट्रीज के गिरने की आवाज है, वो सुनाई दे रही है। सो एंड इन द स्काई the feathered fly turtle while they are winking. अब यहाँ पे बात हो रही है, किनकी बात हो रही है? बर्ड्स की। टर्न टर्टल मीन्स उल्टे गिर रहे हैं, उल्टे हो गए हैं। तो बर्ड्स के ऊपर उनका क्या असर पड़ा है उसकी सिंगिंग का?
कि वो उड़ तो रहे हैं आसमान पे, बट इतने ज्यादा पागल हो गए हैं, इतनी सेंसेस उनकी चली गई हैं कि वो बिल्कुल टर्टल हो गए हैं, उल्टे हो गए हैं, वाइल दे आर विंगिंग, फड़फड़ाते हुए। जब वो उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते पक्षी भी जो है वो भी उलट उलट गए हैं, वो भी पलटी खा गए हैं, वो भी इतने ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, इतना ज्यादा लाउड साउंड है कि वो उड़ भी नहीं पा रहे पीसफुली, एंड टर्न अपसाइड डाउन, और बिल्कुल ऐसे गिर रहे हैं वो भी। कौन? पक्षी। अगेन वी क्राई वी आर गोइंग टू डाई, ओ wouldn't you stop your singing? So here again the birds, here first animals were there, then firstly humans suffered, then animals suffered, fishes suffered, and even birds suffered, trees also suffered, and they all are complaining. Again we cry, we are going to die. Oh, wouldn't you stop your singing? क्या तुम अपना गाना बंद नहीं कर सकते? किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो? भीष्म को। But Bhishma soared beyond our reach, however we pleaded and grumbled. और उसका गाना जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, जितना भी हम उसको अप्रोच कर रहे हैं, जितना भी उसको कम गाने के लिए बोल रहे हैं, उतना ही उसका गाना जो है सोर बढ़ा जा रहा है। However we plead and grumble, हम जितना भी गुस्सा कर ले, जितना भी रो लें, लेकिन उसके ऊपर जो है कोई भी असर नहीं पड़ रहा, वो अपनी धुन में मस्त है। जितना भी हम बड़बड़ा लें, ग्रम्बल कर लें, उसको कोई असर नहीं है। तो यहाँ पे here the poet used hyperbole. Hyperbole, you know, that is exaggeration, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला हुआ है। इतना ज्यादा वैसे है नहीं है। पोइट ने ह्यूमर क्रिएट करने के लिए नॉन लिटरेरी जो है टर्म्स वो यूज की हुई हैं, फिगर्स यूज की हुई हैं। तो यहाँ पे लाइक हाइपरबोल की एग्जांपल आप ले सकते हो, माय शूज आर किलिंग मी। ओके, शूज आर किलिंग मी, ही वांट्स टू से कि शूज जो है टाइट है एंड दे आर किलिंग मी, कि किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो इसी तरह से पोइट ने यहाँ पे ये टर्म, ये जनरल जो है यूज किया हुआ है, किनके लिए? एनिमल्स के लिए, ट्रीज के लिए, बर्ड्स के लिए, फिशेस के लिए, कि उनके ऊपर कैसा असर हो रहा है। सो नेक्स्ट, the Vulcan weeps to hear his screech, and mighty mention tumble. So here Vulcan, that is sky, आसमान है, वो भी रो रहा है। क्यों रो रहा है? उसका सॉन्ग सुन के, उसकी आवाज सुन के। स्क्रीच हेयर लाइक उसकी चीखने वाली, टॉर्न हुई, फटी हुई आवाज। एंड माइटी मेंशंस टम्बल, तो जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो भी क्या हो गई हैं? गिर रही हैं। बड़ी बड़ी जो मेंशंस हैं वो भी गिर रही हैं। टम्बल, गिरना। बट नाउ क्यों गिर रही हैं? किसकी आवाज से गिर रही हैं? उसकी चिल्लाने जैसी सिंगिंग की आवाज से गिर रही हैं। But now there comes a Billy Goat, a most sagacious fellow. So that sagacious fellow means the wise fellow. Billy Goat is a male goat. So you can say one wise fellow came there. And who was that fellow? That was a Billy Goat. Billy Goat means male goat. तो इन सभी चीजों को सफर करता देख के एक बहुत ही ज्यादा वाइस मेल गोट वहां पे आता है, और वो डिसीजन लेता है कि ही विल टीच अ लेसन टू भीष्म लोचन शर्मा। तो किसको वो लेसन सिखाएगा? भीष्म लोचन शर्मा को। तो वो वहां पे आता है, किस तरह से अब उसको लेसन वो जो है टीच सिखाएगा, देख, you can see. He downs his horns and charge straight with a bellow answering bellow. उसने क्या है, अपने सींगों के साथ, हॉर्न्स के साथ उसकी बैक पे जो है अटैक किया। किसकी बैक पे?
Bhishma Sharma की back पे and charges straight with a bellow answering bellow. Bellow is a god voice, and that is also a type of Bhishma singing is also a type of the same level of god sound and bellow answering bellow. और किसने किसके साथ फाइट की? गोट की वॉइस ने और भीष्म शर्मा की वॉइस ने। वो दोनों एक ही सुर में लड़ रहे थे, उनकी आवाजें जो है टकराई और लड़ाई शुरू हुई और पीछे से उसने सिंह जो थे उसके साथ अटैक किया उस सिंगर के ऊपर। द स्ट्रेन्स ऑफ द सॉन्ग आर टोस्ड एंड वेल्ड बाय ब्लास्ट ऑफ ब्रूटल वायलेंस। तो तभी क्या हुआ कि जो भीष्म शर्मा था, भीष्म लोचन शर्मा, तो आवाजें आपस में टकराई, उसके ऊपर हमला हुआ और उसको पटक के दूर फेंक दिया। किसने? बिली गॉड ने। एंड ब्लास्ट ऑफ ब्रूटल वायलेंस। तो एक तरह की ब्रूटल आवाज आई, वायलेंस की आवाज आई। एंड फाइनली भीष्म लोचन ग्रांट्स द वर्ल्ड गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? जब गॉड ने उसके ऊपर अटैक किया तो वो आवाजें आपस में टकराई। जितना लाउड भीष्म शर्मा गा रहा था उतना ही लाउड जो है किसने आवाज की? उस मेल गोट ने। दोनों आपस में टकराई और इनकाउंटर हुआ और उसने जो गोट था, उसने बकरे ने उसको पटक के दूर फेंक दिया और ब्लास्ट ऑफ ब्रूटल वायलेंस, तो बहुत ज्यादा आवाज आई और फिर क्या है, एकदम से शांति हो गई और भीष्म शर्मा ने फाइनली अपना गाना बंद कर दिया और क्या दिया वर्ड को? अ गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस। तो इस तरह से जो है पोइट ने बड़े ही अच्छे ढंग से भीष्म शर्मा की सिंगिंग को जो है आपके आगे मीन्स इन फ्रंट ऑफ यू ही एक्सप्रेस्ड इन अ ह्यूमरस वे। सो that is all about the poem. I hope you will understand, and if you have any question you can write me in email which I am going to mention in the description. Thank you so much.